Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Alright, so guys, good evening. This is Deepak, the Two Wheels Wanderer, and welcome back to my channel. Now guys, the Ladakh series, I'm still uploading the Ladakh series. There are 2 episodes left, and uske baad I'm gonna start this particular series जिसके लिए मैं आज तैयारी कर रहा हूँ. As you guys can see, it's a short ride and I'm very excited about this ride because this is going to be a sport touring ride on my CBR 650F. Touring on KTM is so much fun. Touring on a CBR and touring on a KTM, you cannot compare. It's much more convenient and comfortable on the KTM Adventure 390. But sport riding, sports bike have always been my first love and I just can't stay apart for long. Initially जब मेरे पास R15 थी मैं सारे के सारे rides R15 पे करता था, and had I not bought the KTM Adventure 390 I would have done most of my rides on the CBR. I have been longing to find out a route plan, to find a destination where I can ride my CBR and enjoy that inline 4 power of that bike. So finally I have been able to plan out 3 or 4 days, not going to be a long ride, about 4 days ride, but this ride is to fulfill a long pending tick on my bucket list, the Chandrashila trek in Chopta in Uttarakhand. Now it's been years and years before when I first saw the pictures and I heard about this Tungnath, the world's highest Shiva temple, and I've been planning to do this short trek at those magnificent 360 views from the top of Chandrashila peak. And it was about 8 years back that when me and my brother attempted this, but unfortunately after riding about 110-120 kilometers from Rudrapur I met with an accident and we had to cancel the ride and come back to Rudrapur. So that was the attempt made by me to do this trek about 8 years back, but finally I'm attempting this again. I'm not accompanied by anyone, not even Vandana. She is not coming along. I'm hoping to find some snow over there. So yeah, I'm gonna start from Delhi tomorrow morning on my CBR, fully loaded, and try and reach Chopta tomorrow evening. I'm gonna start packing now and plan to start by 7 in the morning. So We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. for some reason, riding on a fully loaded sport bike, sports touring machine has a different feel to it. I'm riding every Sunday on this bike, but those little rides with no luggage, and this bike when I'm aware that it's fully loaded, it's a different feeling altogether. सोच के ही मज़ा आ जाता है. That too in the Himalayas, the twisties of Himalayas in Uttarakhand. So excited. वंदना ने थोड़ा सेंटी कर दिया था वैसे. लास्ट मोमेंट में वंदना मुझे ये कहने लग गई कि मैं भी कार लेके आती हूँ साथ में तुम्हारे, बट नॉट प्रैक्टिकल. शादी के बाद मैं पहली बार सोलो राइड पे निकला हूँ, मतलब टू दीज काइंड ऑफ प्लेसेस. अदरवाइज़ मैंने जैसलमेर टू गुवाहाटी तो अकेले किया था, उसमें कोई इशू नहीं था. Just because I'm riding to Himalayas and mountains, इसलिए she is worried.
Well, those of you who don't know, Tungnath is a temple which is located about 13,000 feet or something, and it is the world's highest Shiva temple. And hardly about a kilometer from Tungnath is Chandrashila top, is where the small shrine again is situated, and that is where we get to see the 360-degree view of the mighty Himalayas. And I just can't wait to fly my drone over there and wow. ये देखो, यहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगता है ना, बगल वाला जो एक्सप्रेसवे है, बाइक्स आर नॉट अलाउड देयर, although I can maintain the same speed over here, but then it's going to be risky because यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक रहता है. I don't know why Indian government doesn't understand this. या तो आप सीसी के हिसाब से लगा दो यार जोर की, अगर उसमें स्पीड लिमिट आपने बढ़ा रखी है तो भाई ये बाइक्स आर कैपेबल ऑफ मच मोर यार. ऑलराइट, गूगल इज टेलिंग मी टू गो फ्रॉम हियर. अब मुझे देखना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से मैं कहाँ से जा रहा हूँ, क्या है ये. अरे यार, व्हाट द फक इज दिस गूगल डूइंग यार. एंड पता नहीं यार ये गूगल ने कौन से रास्ते से ले आया है. साला मैं ट्रैफिक को ही हटा नहीं पा रहा हूँ यार. अभी तक साला कितना हो गया, 38 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और के आसपास होने वाला है. अभी तक मैं ट्रैफिक के थ्रू ही चल रहा हूँ. आई डोंट नो ये कहाँ से लेके जा रहा है मुझे. सो गूगल इज टेलिंग मी दैट आई विल बी देयर बाय 5:32. तो उधर 5:26 दिखा रहा था, 5:32 कर दिया है, क्योंकि साला ये ट्रैफिक जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है वैन से. और सो गाइस फाइनली ये आया ऑफ द फेमिलियर रोड, एंड आई थिंक इसी के थ्रू ले जाने के लिए मुझे पूरा ट्रैफिक के थ्रू लेकर आया गूगल. दिस इज़ द रोड जो काफ़ी फेमिलियर है, एंड ये सीधा मुझे मेरठ बाईपास कराएगा एंड सीधा जो देहरादून वाला हाईवे है उससे जाके मिलाएगा. पूरा नहर के बगल में चलता है ये. जैसे तो बहुत पहले जब मैं एक बार मैंने दिल्ली देहरादून किया था, इसी रोड से किया था. लवली सेक्शन दिस गाइस, लुक एट दिस. आगे आएगा जिसमें पेड़ आ रहे हैं रोड के ऊपर, बहुत ही सुंदर लग रहा है. स्पीड ब्रेकर भी हैं, रंबल्स भी हैं. क्या चुतियापा कर रखा है इन लोगों ने यार. गाइस 10:35 हो गया है, एंड मैं अभी तक इस कनाल रोड में ही चल रहा हूँ, अपर गंगा कनाल रोड. बहुत ज़्यादा, अभी भी 28 किलोमीटर दिखा रहा है. NH 334 जो है, ये मुझे नहीं याद था ये इतनी लंबी रोड है, ये कनाल वाली रोड. मतलब ये है कि इसमें अचानक से गड्ढे आ जा रहे हैं, एंडुलेशन आ रहे हैं, टिप आ रहे हैं रोड पे, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है उस वजह से. और हम चल दिए हैं 142 किलोमीटर्स घर से, और अभी तक कोई ब्रेक नहीं ले पाया हूँ मैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये कनाल रोड को क्रॉस करके जब हाईवे पे जाऊँगा तभी ब्रेक लूँगा हाईवे पे. तो देख लेते हैं अगर उस रोड पे अगर वो मिलता है तो अच्छा सा कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट. और इन ग्लव्स में, रेबिट के ग्लव्स बड़े महंगे वाले मैंने ले तो लिए हैं, पर इनमें साला एक दिक्कत है. इनमें ना ये लद्दाख राइड में मुझे पता चला, उससे पहले कभी मैंने लंबी राइड पे नहीं चलाया था, बट इनमें ये जो नक्कल वाला एरिया है, नक्कल वाला एरिया ये पेन होने लगता है, क्योंकि इसमें नक्कल में ना एक्स्ट्रा वो नहीं है, स्पेस नहीं है. जब आप फिस्ट बनाते हो बहुत देर तक ये पकड़ के रखने पे ना एक्सेलरेटर नकल्स में पेन होना शुरू होता है. तो गाइस हाईवे में मिला तो दिया है, बट ये तो वो है नहीं यार जो मुझे याद है. दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे आ गया हूँ, बट जो कनाल से जिस हाईवे पे हम पिछली बार मिले थे वो पॉइंट नहीं है ये. आर वी इन रुड़की? क्या बात कर रहा है. बट ये रुड़की वाला रोड ये दिखा रहा है. हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 166 किलोमीटर्स की जो राइड थी लॉन्ग अपर गंगा कनाल रोड, उसने कुछ तो फ़ायदा किया है. तो ये एक ढाबा मिल गया मेरे को, एंड लिख है कुछ ढाबा. बाइक यहाँ पार्क कर दी है एंड सामने बैठ सकते हैं. तो यहाँ अपना ब्रेकफास्ट और जो ब्रेक है वो कर लेते हैं. ब्रेकफास्ट का ब्रंच ही हो जाएगा, एंड then उसके बाद आगे बढ़ेंगे. गोप्रो की बैटरी भी डेड हो गई है, ये भी चेंज कर लेते हैं. आई एम समवेयर इन रुड़की राइट नाउ,
और यहाँ से हरिद्वार कुछ है 20-30 किलोमीटर एंड वहाँ से आगे फिर कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग वाली रोड जो है वो लेंगे। ऑलराइट सो गाइस 12 o'clock, ऑलमोस्ट 40 मिनट का मेरा ब्रेक हो गया है यहाँ पे एंड द डिस्टेंस लेफ्ट ऑन द Google says is about 248 kilometers. I've just taken a slightly longish break to adjust my luggage. Now when I travel on this bike, it does not have the hard luggage option. So soft luggage में थोड़ा सा हमें टाइम लग ही जाता है हर स्टॉप में। सारे कॉर्ड्स, ओह देयर वाज वर्सेस 650, सारे कॉर्ड्स वगैरह उनको एडजस्ट करना ही पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा मैंने अपने जो वाटरप्रूफ कवर्स मैंने अपने सैडल बैग्स में और पीछे टेल बैग में लगाया है, उनको एडजस्ट किया। तो 12:01 एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम रुड़की राउंड। So yeah, so far only one biker encountered and that too on the opposite side. Just saw him zoom past. No other bikers so far. Where are you brothers? हरिद्वार का एरिया शुरू हो गया है ऐसा लग रहा है, बिकॉज अब धाम धूम दिखने शुरू हो गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि दिखनी शुरू हो गई है। इतना बड़ा एरिया है इस पृथ्वी पतंजलि के पास है। आप देखेंगे इतने सारे डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं पतंजलि ने। ये ऑडिटोरियम है, पीछे कुछ और है, पीछे रेजिडेंस है। दिस इज़ हाउ यू नो दैट यू हैव एंटर्ड हरिद्वार। दिस रिलीजियस टेम्पल सॉर्ट ऑफ वाइब्स एवरीवेयर। दिस इज सम टेम्पल बीइंग मेड अगेन, जैसे कि टेम्पल की कमी होगी हरिद्वार में। सो गाइस आई कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम हियर। दीज आर नॉट वेरी हाई वंस बट देन या ऑलमोस्ट अबाउट 200 kilometers from Delhi. And we have our first sight of the mountains in the horizon. Oh, Comet. I really like this cute car. MG Comet. Look at this. Beautifully made it is. Alright friends, so we are in Haridwar right now. This is the Har Ki Pauri area. The Ganga is right there. You see all this area is just completely jam-packed during religious festivals. So guys, those are the mighty Himalayas we are about to enter. Top Srinagar is 120, so I have to go through Srinagar. Guys, look at that. क्या रिस्की काम है भाई साहब। Now we have hit the proper twisties. And this is why I have got my CBR over here for these roads. This is where all these 250 kilometers will be worth. And you will throw the bike at one corner, pick it up and throw it at the other corner. Wow, what fun. Oh, मुझे इधर जाना है। कहाँ जाना है? मुझे इधर जाना है। Yog Nagari Rishikesh welcomes you. Let's go finally out of the crowd and into the free flowing twisties of Himalayas. This is the road from Rishikesh towards Badrinath or Srinagar before that, but less crowded and more fun to take the corners. But this is that thrill factory guys. यहाँ पे सारी बंजी वंजी सब होती है। As you can see those raised platforms are for bungees and यहीं से you can also book those rafting sections. Folks, this is the bridge where we stopped for a minute when we were driving for my sister's wedding at Trijugvi Narayan. That was an amazing location and the vlogs had come out pretty nice. If you guys have not seen that series, the Himalayan wedding, it's right up there on my channel. But yeah, we drove through this same route to the destination of my sister's wedding, Trijugvi Narayan. Shade ही नहीं आ रही कहीं पे। Need a break, 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 need a break.
टाइम हो गया है 2:10। काफ़ी ड्राई मौसम है आज एंड पहाड़ों में डल हो जाता है अगर ऐसे ग्रीन ना हो और मौसम बिल्कुल ड्राई और एकदम लाइफलेस मौसम हो, तो वैसा ही है। बट रोड्स आर गुड, सो मज़ा बहुत आ रहा है। बट यहाँ ब्रेक्स लेना बनता है और यहाँ पे मैं भी ड्रोन फ्लाई करने की कोशिश करने वाला हूँ। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि साला पूरे रास्ते एक भी मुझे बाइकर नहीं मिला है, बाइकर फ्रेंड। जो एक दो हैं जो उल्टे जा रहे थे, बट मेरे साथ मेरी तरफ जाने वाला कोई भी बाइकर फ्रेंड नहीं मिला है। आई डोंट नो वेयर आर माय बाइकर ब्रदर्स। बट एनीवेज मज़ा बहुत आ रहा है एंड जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं वेल बिफोर टाइम जो मैंने सोचा था 5:30 बजे से पहले शायद मैं पहुँच जाऊँगा। बट अब क्योंकि पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है तो अब थोड़े ब्रेक ज़्यादा लूँगा मैं। बाकी ड्रोन उड़ाते हैं, देखते हैं कैसे शॉट आता है। ओके Alright, so guys, that was the drone shot. Landscape was beautiful. The colors were sadly not so green right now. But yeah, few maneuvers that I learned how to take those pan shots left to right. The next criticality for me is the petrol pump. Google says somewhere आगे है देवप्रयाग में जाके, बट उससे पहले मेरा अभी जो रिज़र्व में हो गया है 1.6 लीटर्स रिज़र्व का यूज़ हो गया है। भाई मुझे वही देखना है कि मैक्स दैट आई हैव रिडन दिस बाइक इज़ स्टिल 3.6 और 3.7। तो थैंक गॉड 2 किलोमीटर्स पे पेट्रोल पंप है। दैट्स नाइस। So this is the famous Sangam. Probably one of them is Alaknanda and the other one is Bhagirathi. अब कौन सी कौन है ये गूगल में देख के मैं मार्क कर दूंगा, ऐसा मुझे याद नहीं है। ओके, सो दिस इज़ इट। यहाँ से एक आ रही है, वो एक आ रही है और ये मिल के जा रही है आगे गंगा। This is that Sangam point, as you can see people taking dip over there. ये हम पहुंच गए हैं पता नहीं कहाँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। बट गाइस मज़ा आ रहा है। पहाड़ों की राइड ऑन अ स्पोर्ट्स बाइक इज़ सो एंगेजिंग कि साला तुम्हें थकान पता ही नहीं चलती यार, और डिस्टेंस ऐसे फटाफट निकल जाता है बिकॉज पूरे टाइम बस तुम बिजी रहते हो नेगोशिएटिंग द कॉर्नर्स। सीमा प्रारंभ हो गई है कीर्ति नगर, जनपद टिहरी गढ़वाल। राइडिंग द CBR इन द हिल्स is so much fun guys, so much fun. Even the KTM ADV 390 is fun in the hills. Yeah, it's the only ADV, only adventure motorcycle which does corners the way it does, you know, almost like a sports bike. But then the CBR, a proper sports bike, it's a different fun. And the fact that you have so much power on the tap, you can barely use about 25-40% of the power that the bike has. It makes it even more exciting, you know.
because when you find these small straight stretches, empty stretches, you pull the throttle and the bike zooms like a rocket until you hit the brakes hard again, bend it over the corner, exit out of the corner again, high on throttle, and then move up the gears on that small straight stretch again. Wow, this is where these bikes belong, you know. Alright, so friends, वेलकम टू श्रीनगर। ये उत्तराखंड का श्रीनगर है, लेस नोन, बट कुछ सालों पहले तक यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बहुत ख़राब थी, तब तो और भी कम लोग जानते थे इस जगह को, बट अब रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। एज यू कैन सी मार्केट इज़ ऑल्सो कम अप क्वाइट गुड। वही लोकेशन आ गई जहाँ पे वापसी में हम लोग नीचे उतरे थे और बीच पे गए थे। यहीं कहीं रोक के हम यहाँ से नीचे उतरे थे और इस बीच पे हमने थोड़ा वॉकिंग किया था इस बीच पे। मस्ट नीडेड ब्रेक टू बाइक एज वेल। यहाँ से कहीं से उतरने का रास्ता था, आगे से कहीं से है उतरने का, वहाँ से कहीं से नीचे उतर के यू कैन वॉक ओवर दिस सॉफ्ट और बहुत ही पाउडरी रेत है ये, जस्ट लाइक द बीचेस ऑफ साउथ गोवा। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, हम ड्रोन देखते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं थोड़ा सा। हर बार मैं लेकिन एक चीज़ भूल जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट हाइट जो है मेरे ड्रोन की वो 15 मीटर्स पे सेट है, तो 15 वो मैं करना, उसको इंक्रीज़ करना भूल जाता हूँ हर बार। ड्रोन उड़ाने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है जब वो बोलता है मैक्स ऑल्टीट्यूड रीच्ड, तो उस वजह से एपिक शॉट्स जो ऊपर से आते हैं हाइट से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो डेस्टिनेशन इज़ अबाउट 65 किलोमीटर्स ओनली, तो मैं होपिंग अंधेरे से पहले तो 100% पहुंच ही जाऊंगा। यहाँ भी एक टनल बन रही है, मोदी जी ने पूरे, आई डोंट नो, बोलते बोलते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अच्छी बात है कि नहीं है पता नहीं, बट हर जगह टनल बन रहे हैं, हर पहाड़ को खोदा जा रहा है। कनेक्टिविटी तो बेटर हो जाएगी नो डाउट, बट आई डोंट नो हाउ गुड इट इज़ फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर दीज माउंटेन्स। Guys, look at that. 6 बज गया है, मैं अभी भी 30-35 किलोमीटर दूर हूँ, बट लुक एट दोज स्नो पीक माउंटेन्स यार, दोज ह्यूज माउंटेन्स देयर। आई एम श्योर दैट मैं वहाँ तो नहीं जा रहा हूँ, बट देन वाओ, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ से इनका व्यू ज़रूर आएगा। एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट चंद्रशिला टॉप पे या तुंगनाथ पे स्नो मिले मुझे अभी भी। ये रोड तो बड़ा ख़राब है भाइयों। तो ये है थोड़ा सा रिस्की रूट जो ज़्यादा चौड़ा नहीं है और बीच में टूटा हुआ और ट्रक काफ़ी गुजर रहे हैं, तो यहाँ मुझे केयरफुल होना पड़ेगा। वो जो रास्ता जा रहा है वो उस तरफ, दैट गोज़ टू केदारनाथ, और वहाँ से मैं बाइफर्केशन से मैं राइट मुड़ गया हूँ। मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स ऊखीमठ। केदारनाथ के लिए अगर आपको जाना है तो वो सीधा रास्ता जाता है आगे। जी होटल पुष्प 1 ऊखीमठ के कुछ होटल्स आ गए हैं। मेरी डेस्टिनेशन अभी भी 8.4 किलोमीटर्स दिखा रहा है। बुरांश के फूल आ गए हैं बच्चों के हाथ। तो गैस टाइम हो गया है 6:40 एंड I've reached my destination for the day. This is Hotel Akashdeep, जहाँ I will be putting up. This is the parking, and this
is the view, which will be even more gorgeous in the morning. I'll just see rooms कैसे हैं and we'll call it a day for today. यहाँ से 15 किलोमीटर कुछ आगे चौकता है वो ट्रैकिंग पॉइंट है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है.